सो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुग्राम में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज से 5-10 साल पहले क्या टॉप 3 डिजीजेस थे और आज क्या टॉप 3 डिजीजेस आप ट्रीट कर रहे हैं? ओवर द ईयर्स जो स्पेक्ट्रम है वो कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर आ गया है, जिनको लोग जनरली लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। Almost every week we see a guy who is coming to us with a massive heart attack. एक्चुअली क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनका एक स्पेक्ट्रम होता है। वो कुछ महीने कुछ साल में ठीक हो जाती है, बट दीज आर द डिजीजेस जो आपके साथ लाइफलॉन्ग मोस्ट ऑफ रहते टाइम हैं। लाइफ रहते हैं। जी। Good evening, everyone. Welcome to Healthy Conversations. Healthy Conversations is a podcast channel where we will be discussing the most common and the most basic health related issues, but the issues which are very important for you as a community. Hi, my name is Dr. Ashish Gupta and I am an intervention cardiologist at WellMed Hospitals, Gurugram. And today we have the privilege of having with us the most renowned physician in Gurugram, Dr. Prabhat Goyal, a name who needs no introduction. Sir has been the single force driving the health facility in Gurugram for last 20 years, treating thousands and thousands of patients. Sir, thank you so very much for being a part of Healthy Conversations. This is our first episode, and we have been talking about it for a long time. And finally, we are ready to launch this thing. And I have a firm belief that with your expertise and with our discussions, we will be able to provide patients the information which they are looking for, but most of the times because of lack of time during the consultation or their mind being on a specific problem, they are not able to ask us. So without further ado, let's dive into the question, sir, and let's start about it. Okay, I'm ready. Thanks for inviting me for this Hello, sir. conversation. And I think it is required that we should able to tell something in general to the people so that they should improve their lifestyle and live a healthy and prosperous life. And it's a nice day. 1st January we are starting. Yeah, I think, oh yes, I think starting the new year with this is pretty good on our part also. सो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुग्राम में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो क्या मेजर चेंजेस आपने देखे हैं इन द पेशेंट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ डिजीज जो वो लेके आते हैं? आज से 5-10 साल पहले क्या टॉप 3 डिजीजेस थे और आज क्या टॉप 3 डिजीजेस आप ट्रीट कर रहे हैं? तो देखो, यदि हम इसको ऐसे शुरू करें कि अभी हम 2025 में हैं, आप पिछले 5-7 साल कोविड वाले छोड़ दो। जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी इन लेट 90s और 20s, तो उस वक्त ना इन्फेक्शियस डिजीजेस वर मोर कॉमन, जी, तो जिनको हम मेडिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। राइट। बट ओवर द ईयर्स जो स्पेक्ट्रम है वो कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर आ गया है, जिनको लोग जनरली लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। उसमें सबसे बड़ा एपिडेमिक हमने जो देखा है वो देखा ओबेसिटी का। उसके साथ फिर आई शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई, किडनी फेलियर्स, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। अब उसमें भी पिछले 5-10 साल में चेंज आ गया है। जी, पहले ये कहते थे कि ये बीमारियां होती हैं 60 साल या उनसे ऊपर या 50 साल या उनसे ऊपर, और अब हम देख रहे हैं उनको 30s में, कभी कभी 20s में, 40s में। पहले कहते थे कि फीमेल्स में कम होती हैं, अब फीमेल्स में भी ज़्यादा होती हैं, और फीमेल्स में जो मैंने देखा है कि उनकी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर भी होती है। आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके ओपिनियन में आपने भी ये चेंज नोटिस किया होगा? बिल्कुल। आई थिंक सर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि द वर्कफोर्स ऑफ इंडिया, द prime age when they are useful for the country, for their families, that age group is getting affected by heart attacks. Almost every week we see a guy in his late 20s or early 30s, maybe 25 to 35, who is coming to us with a massive heart attack.
फीमेल्स का आपने बात किया, फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक्स का और हार्ट डिजीजेस का रिस्क कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड there are few months where we are doing more female patients than male patients. So I think ये lifestyle related changes जो हैं, so as I understand from your answer, infectious diseases से हटकर अब हम lifestyle related diseases, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उनकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, वो ज़्यादा हम देख रहे हैं आजकल, विच इज़ नॉट ए हेल्दी ट्रेंड। एक्चुअली क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनका एक स्पेक्ट्रम होता है, वो कुछ महीने कुछ साल में ठीक हो जाती हैं, बट दीज आर द डिजीजेस जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जी जी जी, that's I think that's a change we are also seeing in our patients. But sir, मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम की तरफ. ओके, a problem which affects me as a person along with my family, the problem of viral flu or whatever reason the flu is occurring. I have observed that over a period of last 3 to 4 years, the incidence and, if I can say so, the severity of this viral or common flu has increased. At least it has increased in my household. So I would like to understand from you that, do you think that there is a particular reason? Do we have a change after COVID? And what can a normal person do to avoid it? Because it just takes away your productivity. For those 7 days, you are just lethargic, full of weakness. They don't, it's not a mortality causing disease, but it just kills your productivity, and it is so infectious. The whole household takes a month to get out of it. So what is your take on that? फ्लू का इंसिडेंस ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। लोग, यदि हम वेस्टर्न डेटा देखें, इट इज़ द कॉमनेस्ट रेस्पिरेटरी डिजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पहले होता था, लेकिन अब इंसिडेंस बढ़ गया। प्रोबेबली क्या है कि आफ्टर कोविड एक तो हम थोड़े से ज़्यादा ससेप्टिबल भी हो गए हैं चीज़ों को, और जिन चीज़ें जो हमने कोविड में सीखा था कि ये फ्लू इज सेम लाइक कोविड, ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। यदि आप एक कमरे में जहाँ पे कोई जिसको फ्लू है 6 फीट की दूरी पे होगे तो आपको पकड़ लेगा। कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, उससे आपको लग सकता है फ्लू। जो आपने कहा कि फ्लू में मोर्टेलिटी नहीं होती, मैं थोड़ा सा इस पर डिफर करूंगा। इनफैक्ट एल्डरली में मोर्टेलिटी बहुत हाई है। लेस देन 40 में अराउंड इट्स सेड कि 22 आउट ऑफ 1 लाख डजंट सर्वाइव। लेकिन सेम इंसिडेंस यदि मोर देन 60 में देखें तो 226 पर 1 लाख है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो मेन प्रॉब्लम एल्डरली और बच्चों में है। अब इसमें जो बचने का तरीका है वही जो हमने कोविड में किया था, डिस्टेंस मेंटेन करो। यदि किसी को घर में खांसी जुकाम बुखार है या फ्लू है, उसको थोड़ा आइसोलेट रखो या उससे दूर रखो। ये कहते हैं कि यदि आप प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं तो यू कैन रिड्यूस द इंसिडेंस फ्रॉम 12 to 4%, 1/3 आप बच सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है वैक्सीनेशन। फ्लू का क्या प्रॉब्लम, एक चीज जो है कि ये एक सीजनल फ्लू होता है जनरली जी, अक्टूबर टू मार्च में होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, जो विंटर्स मंथ्स हैं। तो यदि हम हर साल अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में वैक्सीन ले लें फ्लू की, उससे ना बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। अब जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये नहीं है कि वो आपको बीमारी से बचाएगा, बीमारी से बचाता है। जैसे लास्ट ईयर की जो वैक्सीन थी वो 42% इफेक्टिव थी, बट मेन एडवांटेज ऑफ वैक्सीन इज दैट कि आपकी डिजीज सीवियर नहीं होती है, माइल्ड रहती है। और एल्डरली में और बच्चों में इट डिक्रीजेज द हॉस्पिटलाइजेशन, इट डिक्रीजेज द मोर्टेलिटी। इनफैक्ट देयर इज सम डेटा जो आपके काम का भी आता है कि एल्डरली में फ्लू वैक्सीन समहाउ प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक्स ऑल्सो, इट डिक्रीजेज द कार्डियक मोर्टेलिटी। प्रोबेबली जिन लोगों को निमोनिया होता है या फ्लू होता है, जैसे हमने कोविड में देखा, दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स। सो वैक्सीन्स टेकन एट पर्टिकुलर टाइम गिव्स यू बेनिफिट। सो फ्लू की वैक्सीन इज इजीली अवेलेबल एंड आई थिंक एवरीवन शुड टेक इट बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, जो उसका टाइम पीरियड है इन नदर्न हेमिस्फीयर इन आवर कंट्री। तो सर, ये जो वैक्सीन है फ्लू का, ये हर साल अलग स्ट्रेन के लिए आता है या सेम वैक्सीन चलता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लू है, जैसे हमने कोविड में देखा था कि उसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं जी।
तो ये जो वायरसेस हैं ये एक स्टैटिक नहीं रहते, इनके ना DNA RNA वगैरह बदलते रहते हैं। ओके। तो एवरी ईयर WHO और जो CDC US वाले हैं वो जून जुलाई में एक प्रेडिक्शन करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाला स्ट्रेन जो है ओके। वो इस साल स्ट्राइक करेगा, जो म्यूटेशंस हो गई हैं। तो दे रिलीज द वायरल स्ट्रेन टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हर साल एक वैक्सीन, न्यू वैक्सीन कम्स, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि दिस वैक्सीन इज फॉर 2024-25 ईयर। जैसे जो अभी जो हम लगा रहे हैं वो 2024-2024-25 के स्ट्रेन्स के लिए इफेक्टिव होगी। किसी किसी साल उनको लगता है तो सेम आ जाती है, बट एवरी ईयर दिस इज ए न्यू वैक्सीन विच कम, इट इज रिलीज इन सितंबर बिकॉज सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर। और जब हम वैक्सीन लगाते हैं उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 14 डेज में आती है। ऑलराइट, ठीक है सर। तो इसका मतलब इस साल मुझे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। आई हैव नेवर लगवा लेनी चाहिए थी 2025 में, अब अक्टूबर के अंदर आई शुड गेट वैक्सीन। As early as possible, October to December is the season, is from October to March. So we can October to March. So we can get it done any time once it is available. और ये वैक्सीन सर मार्केट में इजीली अवेलेबल है? Yes, it is easily available. बहुत सारी कंपनीज की आती हैं। ऑलराइट, ओके। और सर बहुत सारे पेशेंट्स का नहीं, कम्युनिटी में ये भी डाउट रहता है कि इन वैक्सीन्स का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग किसी भी वैक्सीन को, स्पेशली एडल्ट वैक्सीन को, इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज दे हैव हर्ड कि इसका कुछ साइड इफेक्ट है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होगा, जो हम बॉडी में दे रहे हैं, वो चाहे वैक्सीन हो चाहे मेडिसिन हो, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई डोंट डिनाई दैट, बट इट इज ऑलवेज द रिस्क इज टू बेनिफिट। जी, ऑफ कोर्स। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जीज होती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हमें मना करते हैं, जो उसमें गाइडलाइंस भी हैं, बल्कि प्रोडक्ट मोनोग्राफ में भी लिखा है कि जिनको एग एलर्जीज हैं दे शुड अवॉइड टेकिंग दीज वैक्सीन। या वो यदि वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है तो वो फिर सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही लगाते हैं हम, और फिर उनको थोड़ी देर रखना पड़ता है, बिकॉज मोस्टली दीज जो वैक्सीन्स होती हैं दे आर व्हेन दे आर मैन्युफैक्चर्स, तो उसमें ना थोड़ा सा एग प्रोटीन्स वगैरह का एलिमेंट होता है, बिकॉज वो सेल लाइन्स वैसी होती हैं जिन पे वो वैक्सीन प्रिपेयर होती है। तो एलर्जीज का एक अलग है। बाकी साइड इफेक्ट्स, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है लोकल साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा पेन हो सकता है, माइल्ड फीवर आ सकता है, बट दोज आर द माइल्ड। जैसे बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं तो उनको भी होता है। राइट। सो बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज सेड कि 1 और 2 पर लाख में किसी को कोई जबरदस्त रिएक्शन होता है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ दीज वैक्सीन आर safe. But word is always divided between yes or no. No, I think this point that अगर आपको egg allergy है तो you have to be careful. Yes. Other than that, grossly speaking, you should be safe while you are taking a vaccine. Yes. Right. Sir, ऐसा कुछ, do you suggest any dietary changes during these months which can improve your immunity, if I can say, or give you protection from these flu? Do you think that preemptively wearing a mask or other things, they have a role to play in prevention of flu? जहाँ तक फूड और चेंजेस की बात है, एलोपैथी साइंस में ऐसा कुछ सच रिकमेंडेशंस नहीं है। हाँ, जो जैसा हमने कोविड में किया था, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, वो सब चीज़ें हेल्प करेंगी फ्लू में। बिकॉज okay, I think these are very useful points, sir. I think है तो ये, ऐसा आपने कहा, मेरे को ऐसा लगता था बिकॉज मैं अपने से रिलेट कर रहा था कि छोटी प्रॉब्लम है, बट द मोर्टेलिटी रेट इज प्रीटी सिग्निफिकेंट इन पर्टिकुलर सब ग्रुप्स. सो आई थिंक विद दीज लिटिल बिट additional information that people have got today from you, I believe that it should be useful for them. Prabhat sir, what do you think are the few, or if I can say top 3 red flag signs जो कि patients generally miss कर जाते हैं and which leads to, you know, serious complications? What are these 2-3 red flag signs which patients should not miss according to you? देखो, जो मेरे को लगता है कि
कुछ कॉमन चीज़ें देखो, जब हम रेड फ्लैग साइंस बोल रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीजेस, जी उसके अंदर आते हैं हार्ट, स्ट्रोक्स और दिस थिंग्स. चेस्ट पेन एवरीबडी नोज, जी दे कम्स टू अस. ब्रेथलेसनेस एवरीबडी नोज कि यदि उनको सांस फूल रहा है तो दे टेक ओपिनियन फ्रॉम द डॉक्टर्स. लेकिन मैं कहूँगा कि ब्रेथलेसनेस पहले से एक सिम्टम जो पहले आ जाता है वो है कि यदि आप जल्दी थकने लग रहे, ईजी फैटिगेबिलिटी. यदि आपको लगता है कि आप पहले जो काम आराम से कर लेते थे अब उसमें नहीं कर रहे हैं ना, वो एक फर्स्ट साइन हो सकता है इससे पहले कि ब्रेथलेसनेस वैसा आए या कुछ हो. ब्रेथलेसनेस में भी यदि आपको रात को सोते सोते सांस कर उठना पड़ता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है. जी यदि आपको स्वेलिंग आ रही है तो आप थोड़ा सा केयरफुल होइए. स्वेलिंग कभी ऐसे नहीं आती है, उसके लिए रीज़न हमेशा ढूंढना चाहिए. अनदर इम्पॉर्टेंट इज डिजीनेस. यदि कभी भी अनएक्सप्लेन डिजीनेस है या फॉल हो गया या आपको लगता है चक्कर खा के गिर रहे हैं, अंधेरा आ रहा है आंखों के सामने, ये एक सिम्टम है जिसको हमेशा इवेल्युएट करना जरूरी होता है. वो बात ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द एज कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट दीज थिंग्स वन शुड नॉट इग्नोर. तो ईजी फैटिगेबिलिटी, डिजीनेस एंड फॉल, स्वेलिंग, रात को सोते सोते सांस के कारण उठना, ये चेस्ट पेन. और एक और चीज़ जो कॉमनली मिस्टेक मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो है कि अपर एब्डोमिनल फुलनेस होती है लोगों को, जी स्पेशली ऑन एक्सर्शन होती है या कभी खाने के बाद होती है, और वो उसको ना एसिडिटी करके of course, yes. करते रहते हैं, अपने आप भी ट्रीट कर लेते हैं जी या किसी से फ़ोन पे पूछ लेते हैं, वो कहता है एसिडिटी होगी आप ये खा लो ये खा लो, बट दैट कैन बी ए साइन ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो. सो these are the few things which I feel one should not ignore. आई थिंक सर जो आपने अपर एब्डोमिनल फुलनेस का बात किया, आई थिंक देयर हैव बीन डजन्स ऑफ माय पेशेंट्स यू नो जिनका मैंने फिर एंजियोप्लास्टी किया है एंड दे हैड कम टू मी आफ्टर they have visited the gastroenterologist. Some of them have already got an endoscopy done and their main complaint was that whenever I walk I feel an upper abdominal fullness, I get a burning sensation, and some of the patients they complain of belching. So I think you are absolutely right कि ये सारे non-specific या milder symptoms you know they are very very important to be detected at the beginning so that they don't become a problem. मेरे अपने हिसाब से जो मैंने देखा जो लोग कॉमनली मिस कर देते हैं ना वो होता है इजी फैटिगेबिलिटी. और जो ये जो आजकल आपने सुना होगा ना वो जिम में करते हैं ये करते हैं, तो मैं कई बार ही पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हम पहले अच्छा ट्रेडमिल कर लेते थे अब हम जल्दी थक जाते हैं. तो डेट कैन अगेन अ वार्निंग सिम्टम्स कि जो आदमी रोज एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक वो जल्दी थकने लग जाए, देन वन शुड नॉट इग्नोर दैट कि वाई योर एक्सरसाइज कैपेसिटी इज रिड्यूसिंग जबकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. इट शुड इम्प्रूव डेफिनेटली. सो दैट कैन बी ए warning sign or red flag कि one should investigate. Sir, I believe that there has been a lot of talk about maintaining a work-life balance, and I feel that it is so very important for physicians also to maintain a work-life balance. So I think everybody would be interested in knowing how does Dr. Prabhat Goyal maintains a work-life balance when I know that you work like maybe 14 hours a day and you have been working like that for a very very long time. So tell us something about your work-life balance. नहीं, उसमें कुछ ऐसा कोई स्पेशल उसका कोई फॉर्मूला या प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. ओनली वन थिंग इज दैट कि आई एम वेरी रेगुलर अबाउट माय एक्सरसाइज. Oh, that's very nice, sir. आई डू एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. Okay. वो मेरा टाइम फिक्स है. कब करते हैं सर आप? सारे टाइम तो आप पेशेंट्स के साथ होते हैं. You start very early in the morning? Yes. Okay. I am very early riser. So around 5 to 6 is my time of exercising. All right. Fantastic. And then I start my day official day from 6 o'clock onwards. And otherwise I do only thing I am very particular about my food. I eat very small amount of food every day. Okay. Every day I eat fruits. That is very important. Fruits, nuts, dry fruits. This is always there. Other things may not be there, but Okay. and regular exercise. That is my
That way is of your life. mantra of keeping yourself fit and Yes. maintaining a work-life balance. Yes. And do you have lunch, sir? Do you get time to get lunch, or you don't take lunch at all? Actually, for doctors, there are two professional hazards. One is timing of food, Okay. and second is adequate amount of sleep. So I think every doctors has lacks these two things. But somehow I have made one schedule, so I follow that, and I have no problems as such for that. Alright. I think, sir, let us give it a rest with this information. And I feel that today's session on this first day of New Year has been very, very enriching, at least for me. I have also learned few things, and I feel that we have started it in the right earnest, trying to give to the community the information which we want to give. And I hope we will continue with many more sessions like this. Sure. We will get more and more specific. We will take patients, and we will try to take questions from the general public also. And let us see if we can give them solutions via the mode of this podcast. So thank you so much for being a part of Healthy Conversations. And I am sure that we would be able to keep it up and keep this conversation as healthy as possible. Wishing all of you a very happy new year. I am Dr. Ashish Gupta signing off. Till then, take care, stay healthy. Thank you.